together, and our principal ma'am has really supported us in fulfilling our mission of leaving no one behind, and also promoting the power of one. How every student can make an action, every student can bring some positive change in the college as well as in the society. फ्रेंड्स, आज हैं हम सीनियर गवर्नमेंट कॉलेज 11 में, जहां पर कि सोका गकई इंटरनेशनल की एग्जीबिशन लगी हुई है और उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स एम्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बातचीत करते हैं। So SOHA, Seed of Hope and Action. It is created by Soka International and Earth Charter International. Soka is a Buddhist philosophy telling you about interconnectedness and inseparability of life. Over 12 million people are working all around the globe to tell people about sustainable development. With the Earth Charter International is about the human element in sustainable development goals and the power of one. What a single individual can bring a change in society. So what we can do is by changing our human behavior, our lifestyle, our way of eating, our saving, reusing the products, sustainable products, using the sustainable products, single use of plastics, and saving electricity. These are the small things which we can do and encourage others, prevent food wastage. This is one of the most important things which every one of us can do. And if we see what are the different ways in which we can prevent food wastage, is making dishes in a different way, composting the food which is left over, donating it, educating the people about the food and how the wastage can be reduced. बिकॉज बहुत सारा पानी भी लगता है फूड को कुक करने में, और जब वेस्ट जाता है तो हमारा वो पानी भी वेस्ट जाता है, विच कैन बी यूज्ड बाय मैनी अदर पीपल हु आर नॉट गेटिंग वाटर। You करते हुए now we're going to talk about Mario Castillo. He was the head of the coordinating unit of the Environment Ministry of Mexico. He was Mexican, and he took a big part in the humanitarian work well all over the world, but mainly in Mexico ज़्यादा. And he was the one who launched Earth Charter, basically started spreading awareness about Earth Charter in Mexico. डेवलपमेंट गोल थ्रेट्स टू आवर सर्वाइवल वी कैन सी दैट, मतलब अब आज की जो दुनिया है उसमें जो क्लाइमेट इमरजेंसी है वो बहुत ज़्यादा एक थ्रेट बन चुका है। तो हमने अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है और हमें मतलब कि एफोरेस्टेशन करनी है, पेड़ों को नहीं काटना है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा जो क्लाइमेट है वो कंजर्व हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं सी ऑर्चिन के बारे में, तो वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में आ चुका है, जो कि सी अर्चिन को कंज्यूम करता है। और सी अर्चिन एल्गे नाम, एक एल्गे का वो काइंड होता है जो कैल्पो होता है, उसको कंज्यूम करता है, जो कि इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सोप मैन्युफैक्चरिंग, शैम्पू और By our principal ma'am, she has given us an opportunity to put this exhibition and make the students aware, and we hope this exhibition or this awareness session will go on further also, because we have signed an MOU with the BSD for further activities as well as awareness campaigns, exhibitions and other activities which will keep on going on throughout the session. आनंद में रहती हैं एंड शी स्टार्टेड हर केटरिंग बिजनेस सूफ्रा। इसमें रेफ्यूजी वुमेंस अपने अपने कल्चर की रिस्पेक्टिव डिशेज बनाती हैं, एंड नाउ शी इज़ डायरेक्टर ऑफ वुमेन प्रोग्राम एसोसिएशन वेयर शी वांट्स टू हेल्प एंड एम्पावर एवरी गर्ल एंड वुमेन इन द लाइक refugee camps for the development of community and make their country a better place. And Mariam says that we can do anything, we just need a chance, we just need a push. न्यायांश हुसैन सैबिट विलियम। न्यायांश हुसैन सैबिट विलियम एक ह्यूमन राइट लॉयर हैं और इस साउथ सुडान से बिलोंग करते थे, और इन्होंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि वुमेंस के राइट के लिए फाइट करेंगे, बिकॉज जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पे वुमेंस पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था। ये डबल मार्जिनलाइज थे, बिकॉज ये फर्स्टली वुमेन थे, सेकेंडली ये लोअर कास्ट के थे। और ड्यू टू सिविल वॉर इन सुडान इनकी फैमिली को एज IDP डिक्लेयर कर दिया था, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, वेयर दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेज, एंड उनको कैंप में रहना पड़ता है। और इसकी वजह से वहाँ पर उनके जो फादर थे वो सर्व कर रहे थे अपनी जॉब में, और उनकी जो मदर थी उनको एज अ कम्युनिटी लीडर बनाया गया। एग्जैक्टली द टर्म ग्लोबल क्राइसिस मीन्स कि हमें बताइए कि बहुत सारी कंट्रीज़ को पॉलिटिकल, सोसाइटल, इकोनॉमिक इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो हमारा जो पैनल है दैट इज़ लिंक्ड विद हाउ अस एंड द मदर अर्थ, नेचर, इन्वायरमेंट जो है दैट इज़ रिलेटेड विद ग्लोबल क्राइसिस। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई यूज़ नहीं करता, फिर डिफोरेस्टेशन हो रही है, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता है। तो इससे सिर्फ हमें नहीं या आपको नहीं बट पूरे ग्लोब को क्या है कि फेस करना पड़ता है। माई पैनल इज़ पावरलेसनेस। सो बेसिकली पावरलेसनेस क्या है? पावरलेसनेस एक ऐसी सिचुएशन है जब हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं इस काम के लिए बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। हर किसी की लाइफ में एक बार फेलियर आता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए फोबिया डेवलप कर लो या डर डेवलप कर लो। आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? Once a wise person has said, something is better than nothing. At least give it a try. सक्सेस मिले या ना मिले वो बात की बात है। और आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो? आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जो आपको प्रेज़ करते हैं, इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आजकल तो हमारा टॉपिक है व्हाट कैन आई डू। सर इसमें बेसिकली ये है कि अभी तक जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है उसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं। लाइक सर अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पर कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें सर ये हम महात्मा गांधी जी का कोट है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी सर स्टेप्स बनाए जा सकते हैं, एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट अचीव होंगे। बट रादर देन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उस पर तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। उसका सर बेस्ट एग्जाम्पल सर है ये बोइंट्सलैंड। सर ये 16 साल की उम्र में थे जब ये ग्रीस में सर स्कूबा डाइविंग के लिए गए हुए थे। तो इन्होंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि ओशन में फ़िश से ज़्यादा प्लास्टिक अवेलेबल है। तो फिर जो भी इनके पास सेविंग थी $300 की, उन्होंने इसमें एक फाउंडेशन प्लान बनाया जिसमें उन्होंने ओशन का ऑलमोस्ट 50% जो भी प्लास्टिक वेस्ट था वो सारा साफ। दिस इज़ अ वेरी कंबाइंड एफर्ट ऑफ BSG एंड PGGC 11। और ये जो हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एग्जीबिशन थी, दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन दी स्टूडेंट्स एज वेल एज दी फैकल्टी। और अगर हम द पावर ऑफ वन की बात करें तो अगर इंडिविजुअल यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं वो इसको ट्रांसफ़र करेगा टू द पॉपुलेशन एंड द कम्युनिटी। और इससे जो हमारा एम है इस चीज़ को करने का, टू ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड और ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया, दैट डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल वन एंड दिस इवेंट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। SDG is the human element, which talks about the human perspective of SDG. आपने कभी बचपन में देखा होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात बचाने की बात करते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा हो। और हमेशा मेरे को यही सिखाया गया कि वाटर इसलिए वेस्ट ना करो बिकॉज वाटर का बिल ज़्यादा आएगा। अब हमें एक हमें हमेशा इसलिए सिखाया गया कि अपने पर्सनल गेन्स के लिए हमें नेचर को बचाना है। बट अगर मान लो कभी आगे चलती वाटर या इलेक्ट्रिसिटी फ्री हुई तो लोग उसके बारे में केयर करना छोड़ देंगे बिकॉज उनको कोई पर्सनल लॉस नहीं होगा। सो वट वी नीड इज़ अ मेंटल रेवोल्यूशन कि हमें जो भी रिसोर्सेज है उसको सिर्फ सफिशिएंसी में यूज़ करना है कि जितने नीड। Climate justice focus on the equitable distribution of burden of climate change. One of the greatest injustice of climate change is that those who have done the least to cause it feel the impact first and worst through rising sea level and extreme weather. For example, जो रिच पीपल होते हैं वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि वो एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं और रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और टेम्परेचर राइज होता है और गर्मी ज़्यादा होती है। ज़्यादा सफ़र पुअर को करना पड़ता है क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा होगी उन्हें ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। So my panel is regarding the interconnection between the human and nature. Human and nature are both interconnected to each other. Do you feel that nature is a part of us? Yeah. Yes, nature is a part of us because we actually depend on nature on many things, right? Ecosystem services, right? We in two ways. I will explain in two ways. First is physical. We depend on nature because we need air to breathe in. We need food for our survival. The postgraduate government college in Sector 11 for actually supporting our endeavor with a lot of peace and enthusiasm behind the scenes from the staff, from the faculty, from the senior most principal ma'am and all the staff, all authorities responsible of taking care of the institution. So the program is basically to undergo a human evolution. And when we undergo a human evolution, each one of us will make a difference into the society, and that was our motive today. So agents of change are someone who basically promote, support and initiate changes in the society. There are certain roles and responsibilities of agents of change, like first develop a need of change, means awareness create करनी पड़ेगी crisis के बारे में और कैसे उसे overcome किया जाए। Then उसके बाद
रिलेशनशिप बिल्ड करने मिलेंगे। मीन्स एक अकेला पर्सन बड़े स्केल पे चेंजेस नहीं ला सकता है, सो उसको अपने इनिशिएट कर सकता है और फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू वो आगे सेलिना लियोन है, वो क्लाइमेट एडवोकेट है, इन्होंने एक्शन लिया था क्लाइमेट चेंजेस पे। हमें पता ही है जो क्लाइमेट है वो बहुत चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से। तो इनका मानना था जो कंट्री का फ्यूचर है बहुत ब्लैक है, तो इन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी है। तो 2015 में कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ग्लोबल लीडर से ये रिक्वेस्ट की थी कि क्लाइमेट चेंजेस पे एक्शन लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि जो मार्शल आइलैंड्स है, 34 एटल्स है, 1000 स्मॉल आइलैंड्स है, 52,000 पीपल्स है, वो एग्जिट करते हैं पैसिफिक ओशन में, और जो आइलैंड की हाइट है 2 मीटर अबव थी, जिसकी वजह से फ्लडिंग आने के चांसेस होते हैं। That is a very important point for us because an individual can change whole world. तो ये कैसे बदल सकता है? वो अपनी सोच से चेंज कर सकता है। तो सोच जो है वो हर एक पर्सन को पॉजिटिव वे से प्रेजेंट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, जिसके बाद हम लोग कोई एक्शन ले सकें। और जब हम एक्शन लेंगे तो जो नेशन है वो इन्फ्लुएंस होएगा हमसे, और एक बहुत बड़ी सोसाइटी आएगी, काम करेगी हमारे साथ, जिसके बाद जितने भी हमारे गोल्स बनाए हैं सस्टेन करना, नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं। एक डॉक्यूमेंट था 2000 में लॉन्च किया गया था इसे। इसमें पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ज्वाइन देयर हैंड्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 4 बेसिक पिलर्स रखे गए थे। फर्स्ट वन वाज कि हमें अर्थ की रिस्पेक्ट करनी है और हमें लव और कंपैशनेट रहना है हर एक के प्रति। देन हमें इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी प्रमोट करनी है। फिर हमें जस्टिस प्रोवाइड करनी है हर एक को, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो। एंड देन हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि डेमोक्रेटिक हो, पीसफुल हो और नॉन वायलेंट। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द आउटर वर्ल्ड। तो हम सबको लगता था कि जो टॉप ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम कोलैप्स, क्लाइमेट चेंज, ये हैं भी। बट हमें ये भी लगा था कि अगले 30 ईयर्स के अंदर अंदर वी वुड बी एबल टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज द मेन प्रॉब्लम्स एक्चुअली में क्या थी? सेल्फिशनेस, ग्रीड, एपैथी, जेलसी जो हमारे अंदर है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ब्रिंग चेंज विद इन आवरसेल्व्स फर्स्ट। वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट एज वेल एज कल्चरली। Also, we need to expand our hearts and take care of our future generations, our country, community, family, and most important is me, which is our future. So basically, it is all about sustainable development. What it means to sustain the natural resources for not for only us, but also for our future generations. Okay, we should not be so much selfish that all the resources are consumed by us only. We have to preserve it for our future generations. So basically, my panel is about it starts with one. It starts with one person, one community, one society. हाँ जी। दिस पैनल इज ऑल अबाउट द इंटरकनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, क्योंकि नेचर और ह्यूमन आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो एनिमल्स नेचर के अंडर आते हैं, प्लांट्स नेचर के अंडर आते हैं। अगर हम ह्यूमन रेस को इतना कंजर्व कर रहे हैं तो एनिमल और प्लांट रेस को क्यों नहीं कंजर्व कर रहे हैं? उनके कंजर्व ना होने से हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल है इस फोटो में गोल्डन लायन टैमरिन, जो कि इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आ रहा है और ये ब्राज़ील में पाया जाता है। और ये इंडेंजर्ड लिस्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है। This is the panel regarding the Sustainable Development Goals. As goal of today's event depend on these 17 SDGs. United Nations in 2015 gave us these 17 SDGs. It is a type of a universal call to you, to all of us, to bring prosperity and peace in your life and for the others' life. The United Nations gave you some suggestions that how you can achieve these 17 SDGs in your life. So some of these suggestions are donate your old clothes, donate your books, donate the material जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे वो भी किसी organizations को दो, जैसे कि सोका ककाई इंस्टीट्यूशन है। My panel is about Sajid Iqbal. So he's a low-cost lighting social entrepreneur from Bangladesh. So he lived in a place named Sylhet, where it is a poverty-ridden area. So it is a poverty-ridden area. So there was shortage of electricity there. So to overcome this problem, he came through an idea in which by fitting the light bottles on the rooftops, we can generate electricity and light through the reflection of the bleach and water. Reforestation expert. इनके थ्रू हम रीजनरेशन पॉसिबल हुई है अबाउट 70% ऑफ द ट्रीज। इनके वर्क ने खुद प्रूव किया है कि रीजनरेशन इज पॉसिबल इवन व्हेन द एनवायरनमेंट वाज डिस्ट्रॉयड। बेसिकली चॉम्बर बोर्न हुई थी पेरू में, जो बहुत ही रिमोट एरिया है एंड इट इज़ इन अमेजोन बेसिन। इन्होंने लर्न किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, बिकॉज ट्रीज आज यू ऑल नो बहुत बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन, फूड एंड एक्सेट्रा बहुत कुछ मिलता है। तो बेसिकली इनका वर्क क्या था, इन्होंने क्या किया, अमेजोन बेसिन जो कि बहुत अनफर्टाइल लैंड है, थ्रू रिसर्च स्टडीज, मतलब
इन्होंने PhD स्कॉलर की हुई है अपने रिसर्च में, और इन्होंने एक अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल किया है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए कितने कैपेबल हो एज एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स योर सोसाइटी। इसमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि जो आज हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, बट हमें ऐसा कुछ वेज अपनाने चाहिए जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी वो रिसोर्सेज यूज़ कर पाएँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 core एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सेकेंड इज सोशल इंकल्चर एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। BST इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत सोका गकाई है। इसमें आप अपना ऐप है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐप बनाया है जो कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन पे डाउनलोड हो सकता है। Now you can please give your feedback here by scanning the Google form, and any suggestions or anything required, you can please give your suggestions.